Hi dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to continue with the second part of the chapter, The 100 Races. So in the first part we had read that Wanda Petronovsky is the main character of the story, and two girls named Peggy and Maddie mostly make fun of her because of her dresses. So often they ask her how many dresses is she having, and she always replies with the that she is having 100 dresses in her closet. And now we also acknowledge by the end of the chapter that Wanda has moved to some other city with her family, and now Maddie and Peggy both are very regretful. They just want to repent in front of Wanda, and especially Maddie feels very guilty because she never asked Peggy not to pass such kind of remarks for her. So let's start reading the chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. So टीचर ने कहा था उनको स्टूडेंट्स को कि नाउ दे कुड सी द ड्राइंग्स दैट शी हैड मेड 100 dresses, drawing of the 100 dresses, and then the teacher has asked the students to take a round and have a look at the work done by Wanda Petronovsky. So now the students were moving in the room to see the work of Wanda. So then the monitor of the class brought a note from the principal's office. Now Miss Mason is so stuck by that letter that she reads it again and again. Then she claps her hand. तो clapping करते हैं. Then she claps, and she seeks the attention of the students by clapping the hands. Attention class, everyone back to their seats. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Then, wait, yes, so shuffling over here means, here we are having the word shuffling. Shuffling means movement. So, when the movement of the feet stopped, means there was pin drop silence now. Then the teacher said that she wants to read something to them. Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. तो जब वो टीचर वहाँ पे खड़ी थी तो जो माहौल था रूम का वो थोड़ा एक्सपेक्टेंट हो गया. मतलब वहाँ पे थोड़ा बच्चे जो थे बिल्कुल शांत हो गए और टीचर की तरफ ध्यान से देखने लगे. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. तो धीरे से and प्यार से उन्होंने अपने ग्लासेस को ठीक करा. Her manner indicated that what was coming this letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो सारे उसको ध्यान से सुनने लगे. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to a big city. No more Holler Pollack. No more Asswipe funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronas. Then अब हमें पता चलता है कि जो वांडा है वो सिटी को छोड़ के जा चुकी है, एंड शी इज़ मूविंग टू अनदर सिटी विद हर फैमिली. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. तो टीचर ने अपने सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ पे उसको साफ करा अपने ग्लासेस को. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास. When she spoke, her voice was very low. तो जब टीचर ने बोलना शुरू करा तो उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा. I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do.
And this is a very unfortunate thing to have happen. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. तो टीचर ने कहा कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत बुरी हुई है। एंड शी सेज के मुझे लगता है कि जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, किसी ने भी जानबूझ के ये कुछ नहीं किया होगा, बिना सोच विचार के किया होगा जो भी किया होगा। एंड किसी की हर्ट फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, और उसको लगता है कि जो सारे उस क्लास के बच्चे हैं उनकी सोच उनके टीचर से मिलती जुलती है। दैट मीन्स शी फील्स कि किसी ने ये गलत नहीं काम किया होगा, किसी ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया होगा, इस वजह से कि उसका नाम अजीब है या लंबा है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. But she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought that they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. तो जो उनका फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ने बहुत कोशिश करी अपनी लेसन्स प्रिपेयर करने की, बट उसकी कंसंट्रेशन नहीं लग रही थी। उसको बार बार ये फील हो रहा था कि उसने उसकी वजह से वांडा ने वो जगह छोड़ी है। ठीक है, ये तो बात सच्ची है कि वांडा जब वो वांडा की मजाक उड़ा रही थी उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया साथ में, बट प्रॉब्लम वॉज कि उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने रोका भी नहीं, और शायद वो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ थी। ठीक है, क्योंकि जो पैगी थी वो कम से कम सेल्फिश तो नहीं हो रही थी, बट मैडी जस्ट बिकॉज उसको लगता था कि जो अगर वांडा चली गई, अगर उसने पैगी को बोला कि वांडा को ऐसे मत बोलो, तो ये ना हो कि जो पैगी है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। Put herself in Wanda's shoes means to put yourself in somebody's place. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. तो अब वो सोच रही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सकती है। अगर वो वांडा को बता पाती कि उसका उसका फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लास एट पैगी। तो उसने अपना फेस घुमाया और पैगी की तरफ देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। मगर पैगी ने ऊपर उठ के नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टार्टिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई में बिजी है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। तो अब वो क्या सोच रही है कि पैगी ने चाहे कुछ गलत किया या नहीं किया, अब उसे महसूस हो रहा है या नहीं हुआ रहा है, बट मैडी ने सोच लिया कि वो कुछ करेगी। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। तो शी सेइंग, अब उसको लगता है कि वांडा को उसे ढूंढना पड़ेगा, मैडी को, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि जो वांडा है वो अभी तक गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। ये भी हो सकता है कि जो पैगी है वो उसके साथ उसके घर के पे जाए और वांडा को बताए कि उसके वो जो कॉन्टेस्ट है वो जीत गई है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल। और ये भी बताएं कि उनको लगता था कि वो इंटेलिजेंट है एंड उसकी जो ड्रेसेस उसने बनाई थी वो सारी ब्यूटिफुल थी। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जब स्कूल ख़त्म हुआ आफ्टरनून में, तो पैगी ने बड़े नॉर्मल ढंग से कहा कि चलो देखते हैं कि वो लड़की गई है या नहीं। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोर, पैगी वॉज रियली ऑल राइट। सो अब मैडी को इस चीज़ की खुशी हो रही थी, उसकी आंखें चमकने लगी कि पैगी भी सेम सोच रही थी। ठीक है, सो द टू गर्ल हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिन्स हाइट, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। डैम्प एंड डिस्मल का मतलब क्या होता है? या सो डैम्प एंड डिस्मल मीन्स वेरी सैड, वेट एंड सैड, एक्सप्रेसिंग के उनको
होप नहीं थी, उनको उम्मीद नहीं थी। सो यहाँ पे जो अब नवंबर आफ्टरनून में वहाँ की एयर कैसी थी, फॉरबिडिंग, गीली सी, सैडनेस से भरी हुई। वेल, एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, सांस भरते हुए, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। कहती मैंने ऐसा तो नहीं कभी करा। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। शी इज सेइंग कि मुझे कभी ये इतना लगा ही नहीं था कि वो इतनी इंटेलिजेंट, उसको समझ आएगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा फुलिश है। एंड शी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है। मेडिके कुड से नथिंग, ऑल शी होप दैट वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। तो मैडी ने कुछ नहीं कहा, उसने ये बस उम्मीद कर रही थी कि वो वांडा का ढूंढ ले, और वो उसको बताना चाहती थी कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए वो सॉरी कहना चाहती है। एंड हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट शी वॉज, और सारी क्लास को वो कितनी थॉटफुल लगती थी, ठीक है, कितनी अच्छी लगती थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और उसको बताना चाहती थी कि यहाँ से मत जाओ, सारे ठीक हो जाएंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस, पैगी और वो जो भी ऐसा है जो नहीं अच्छा है उसके साथ लड़ेगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। तो वो स्पीड से जाने लगी फटाफट, और वो अंधेरा होने से पहले हिल के ऊपर जाना चाहती, हिल पे चढ़ना चाहती थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोनोस्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। तो मैडी ने वहाँ पे जो वाइट हाउस था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद किसीज वहाँ पे रहते हैं। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक लिथिन किटन्स। तो यहाँ वहाँ छोटे छोटे ग्रास की पत्तियाँ लगी हुई थी, जो तिनके होते हैं वो लगी हुई थी। एंड द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड, स्पार्स मीन्स बिल्कुल क्लियर। तो जो हाउस था और उसका जो छोटा सा यार्ड था वो क्या लग रहा था, शैबी लग रहा था, गंदा था बट साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। उसको देख के मैडी को वांडा की ड्रेस की याद आई, जो कि ब्लू कॉटन कलर की ड्रेस थी, फेडेड थी बट क्लीन थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, नॉट अ साइन ऑफ लाइफ मीन्स वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पैगी ने बहुत ज़ोर से नॉक किया डोर पे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, पीछे की तरफ गई, वहाँ पे नॉक किया, स्टिल देयर वॉज नो आंसर। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनोकीज वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। तो अब इसमें कोई शक नहीं था कि पेट्रोनोज जा चुके थे, पेट्रोनोक्सीज जा चुके थे। अब उनको ये था, गर्ल्स को दोनों को, कि अब वो अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी और अपना हिल से नीचे उतरना शुरू हुई। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो पैगी कहती अच्छा अब तो वो चली गई, हम क्या कर सकते हैं। वो कहती मुझे लगता है कि जब मैं उससे क्वेश्चंस पूछती थी उसके ड्रेसेस के बारे में, तो शायद उसे अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे अपनी ड्राइंग के लिए, ठीक है, और शायद अगर मैं उसको आइडियाज़ नहीं देती तो वो तो शायद कॉन्टेस्ट भी ना जीतती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. तो वो उसको ध्यान से सुनती है, उसको मतलब ध्यान से नहीं सुनती है इस बात को, क्योंकि वो जस्ट अभी क्या करना चाहती है, उसको बहुत बुरा फील हो रहा है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, बट उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वांडा के बारे में सोच रही थी, उसकी ड्रेस के बारे में सोच रही थी। द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उसके छोटे से घर में जिसमें वो रहती थी।
एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड। और जो 100 ड्रेसेस मिल के जो इकट्ठी एक पिक्चर बना रही थी, वो चमकदार पिक्चर बना रही थी, वो उसके बारे में सोच रही थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी क्लासरूम में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। फिर वो पहले लेटी हुई थी, फिर बैठ के अपने फोर हेड को अपने सर से प्रेस करा एंड हैंड से प्रेस करा ज़ोर से, और सोचना शुरू कर दिया। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और सबसे ज़्यादा मुश्किल, पहली बार थी उसने इतना कोई ज़्यादा सोचा था किसी बारे में। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। तो बहुत सोच विचार के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची, मतलब उसने कुछ रिजल्ट निकाला। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो कभी भी किसी का गलत काम में साथ नहीं देगी और किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अगर उसने देखा कि कोई किसी का मजाक उड़ाए फ़नी लुक की वजह से या उसके नेम की वजह से, तो वो बोलेगी, उसका विरोध करेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, फिर चाहे इससे उसकी जो फ्रेंडशिप है पैगी के साथ वो टूट जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो वांडा के साथ अपनी गलती सुधार सके। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. But आगे से वो किसी को भी बिल्कुल भी नाखुश नहीं करेगी, उदास नहीं करेगी। On Saturday Maddie spent the afternoon with Peggy. तो सैटरडे आफ्टरनून उन्होंने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की। वांडा पेट्रोस्की को लेटर लिख रहे थे वो। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा हैड वन। तो इसमें सिर्फ उन्होंने फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे जिसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट का बताना था जो कि वांडा ने जीता था। एंड दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। तो और क्वेश्चंस पूछे कि वो अगर उसको वो जगह पसंद आई है जहाँ पे वो रह रही है, उसकी न्यू टीचर उसे कैसे पसंद आई, कैसी लगी। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी। और ये सारी बातें करने का उनका मतलब क्या था कि वो सॉरी फील करना चाहते थे। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। बट लास्ट तक वो सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर ही बन के रह गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि उन्होंने किसी अच्छे फ्रेंड को लिखा होता। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और उन्होंने बहुत सारा प्यार भी लिखा। दे मेल द लेटर टू बॉगिन्स हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। तो उन्होंने बॉगिन्स हाइट को मेल कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि आगे उसे पहुंचा दीजिए। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर। बहुत दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। इवन लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो शायद वांडा को मिल गया था। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। या ये भी हो सकता है वो इतनी दुखी थी, इतनी गुस्सा थी कि वो आंसर ही नहीं देना चाहती थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते थे। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते बीत गए बट वांडा ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। और ये सारी जो बात हुई थी वो सारा भूलना शुरू कर दिया था पैगी ने। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और रात के टाइम पे मैडी कैसे सोती थी उसके बारे में सोच के। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। उनको बचाते हुए उन गर्ल्स से जो कि उसको टीज कर रही थी। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट, स्टॉप, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो उसको लगता है, वो इमेजिन करती है कि जब वांडा को ऐसे टीज़ किया जाता था, फिर उसको उसके एक्सप्रेशन याद आते हैं वांडा के कि वो कैसे बोलती थी। फिर उसको वो अब चिल्लाती है मैडी कि ये सारा बस बंद करो इस सीन को, ठीक है। तो फिर सारे उसको लगता है कि सारे के सारे
उसके आसपास जो खड़े हैं वांडा के, वो उनको अपनी गिल्टी फील हो रही है. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. क्रिसमस टाइम आ गया था, हर जगह स्नो थी ग्राउंड पे. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. तो क्लासरूम में ये सारी चीज़ें थी. एक तो क्रिसमस बेल्स थी एंड स्मॉल ट्री था. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर. लास्ट जब विंटर ब्रेक होने वाली थी, तो उन्होंने विंटर ब्रेक से पहले टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो कि टीचर को उसी सुबह मॉर्निंग मिला था. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोनस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. तो टीचर ने कहा कि आप लोगों को याद है वो लड़की जिसने कॉन्टेस्ट जीता था, उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे अब बहुत खुशी है कि मैं उसे जानती हूँ कि वो कहाँ पे रहती है और उसे मैं एक मेडल भेज सकती हूँ, उसका मेडल. आई वॉन्ट टू रीड द लेटर टू यू, कि उसका लेटर जो है मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने सुनना शुरू किया. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronosky. तो उसने लेटर में लिखा कि जो ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स हैं, गर्ल्स को बोलो कि वो अपने पास रख लें क्योंकि मेरे घर में मेरे पास और भी 100 ड्रेसेस हैं मेरी क्लोजेट में. मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग है जिस पे कि रेड ट्रिमिंग्स हैं उसको रख ले, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी वो अपने लिए ब्लू वन वाली रख ले. और क्रिसमस के टाइम पे मुझे वो स्कूल की बहुत याद आ रही है. एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. दैट मीन्स शी इज़ सेइंग कि जो न्यू टीचर है वो आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके जैसा नेचर उसका बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं है. Merry Christmas to you and your everybody. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अपनी ड्राइंग्स को बड़ा ध्यान से उन्होंने पकड़ा. All the houses had wreaths and holly in the windows. wreaths and holly होते हैं डेकोरेशंस होती हैं, wreath होते हैं हार. विंडोज़ पे डेकोरेशंस लगी हुई थी. Outside the grocery stores, hundreds of Christmas trees were stacked. बहुत सारे क्रिसमस ट्री लगे हुए थे ग्रोसरी स्टोर्स के बाद. And in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. तो वहाँ पे ये डेकोरेशंस वाली चीज़ें लटकाई हुई थी. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. क्योंकि हर जगह स्नो गिरी हुई थी तो जो डिफरेंट कलर्स थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे. बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. तो वो मैडी को बोलती है कि यार लगता है कि वो हमें रियली लाइक करती है. इट शोज शी गोट आर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और ये इसका मतलब है, इस लेटर से पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिला और वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट. आई होप सो सेड मैडी सैडली. तो मैडी ने कहा शायद मुझे भी यही लगता है. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगैन एंड कुडंट इवन एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. उसको दुख हो रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो उस लड़की को कभी दोबारा देख नहीं पाएगी और कभी उनके बीच में इस बातें सही नहीं होंगी. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. तो उसने ड्राइंग जो थी वो बेडरूम में पिन कर दी, लगा दी. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. जो गंदा सा रूम था वो जीवित हो उठा कलर्स की वजह से, इतने ब्राइट कलर्स यूज़ किए हुए थे. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing.
बेड पे बैठ के वो ड्राइंग को देख रही है. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वो वहीं पे खड़ी रही, कुछ नहीं कहा. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. बट वांडा उसके लिए कितनी नाइस थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखें ब्लर हो रही थी, उसको दिखना कम हो रहा था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो काफ़ी देर तक उस पिक्चर को देखती रही. देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. तो पूरे इंटरेस्ट के पहले उसने फटाफट से अपनी आंखें रब करी और उनको ध्यान से देखा. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. वो कलर्स इतने ब्राइट थे, इतने चमकदार थे कि उसने उसकी तरफ नोटिस ही नहीं किया कि उस ड्रेस के फेस भी है. जो ड्रेस के कलर्स थे वो इतने ज़्यादा ब्राइट थे, इतने क्लियर थे कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसके जो ड्राइंग है उसका फेस और हेड भी है. बट इट लुक्ड लाइक हर. मगर ये तो उसके जैसा लगता था. मेडी. इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. ये तो बिल्कुल उसके माउथ की तरह लगता था. वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. मगर ये ऐसा क्यों लगता था. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. वांडा ने सिर्फ उसी के लिए ड्रॉ करा था. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज. तो वो फटाफट से पैगी के घर की तरफ भागी. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. तो कहती मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ. व्हाट्स अ मैटर, आज पैगी. एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड. मेडी केयरफुली रेज्ड इट. तो वो फटाफट से खड़खड़ करती हुई वांडा की मतलब उसके रूम में गई, पैगी की, जहाँ पे वांडा की ड्राइंग थी लटकी हुई. लुक, शी ड्रू यू. दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. उसने कहा कि तुम्हें ड्रॉ करा है, देखो जो हेड और फेस है इस पिक्चर का ये तुम्हारे जैसा लगता है. व्हाट डिड आई से, सेड पैगी. शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे. कहती मैंने क्या कहा था कि वो हमें लाइक करती है. यू, येस, शी मस्ट हैव, एग्रीड मेडी. उसने कहा हाँ. शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them are all lined up." तो वो कहती हाँ वो हमेशा पक्का हमें लाइक करती होगी. उसने अपने टीयर साफ़ करे जो कि जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी उसकी आंखों में आ जाते थे. जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी कि वो स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी होती थी, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स की तरफ देखती थी और चली जाती थी. और जब वो उसने कहा था कि हाँ मेरे पास 100 ऑफ देम हैं ऑल लाइंड अप. सो दिस इज़ द वॉज द स्टोरी. आई होप you liked it. If you liked, please do tell me in the comments. I'll be waiting for the comments. And thank you, Hannah. Have a nice day. Enjoy your day.